Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing chapter 10, preparation of final accounts, the weightage for which is 20 marks. Here is the question, page number 346, question number 20. From the following trial balance of Messrs. Satyam Traders, prepare trading and profit and loss account and balance sheet for the year ended 31st March 2018. So the trial balance is given as trial balance as on 31st March 2018. Debit balances amount, credit balances amount. The adjustments are given as closing stock, outstanding salaries, depreciation on machinery, prepaid insurance, provide for bad debts. So here is the solution. The heading will be taken as trading account and profit and loss account of Mr. Satyam Traders for the year ended 31st March 2018. Then we'll be preparing balance sheet, the heading for which will be balance sheet of Mr. Satyam Traders as on 31st March 2018. The format for balance sheet is liabilities amount rupees, assets amount rupees, and the format for trading and profit and loss account is particulars amount rupees, particulars amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. So before starting the problem, remember the point that whatever are given as debit balances, these will appear on debit side of trading account or on debit side of profit and loss account, or will appear on asset side of the balance sheet. Whatever are given as credit balances, these will appear on credit side of trading account or on credit side of profit and loss account or on liability side of the balance sheet. जो भी यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस में दिए हुए हैं, ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे. जो भी यहाँ पे क्रेडिट में दिए हुए हैं, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएंगे या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएंगे. सो हाउ डू वी स्टार्ट? फर्स्ट विल बी राइटिंग ओपनिंग स्टॉक. तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 22,000. सो दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एज टू ओपनिंग स्टॉक 22,000. फॉलोड बाई परचेजेस. परचेजेस यहाँ पे कितना है? 75,000, जिसमें से हम परचेज रिटर्न्स माइनस करेंगे जो क्रेडिट बैलेंसेस में रहता. बट ये प्रॉब्लम में परचेजेस रिटर्न स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, तो हम परचेजेस को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे. टू परचेजेस 75,000. देन विल बी राइटिंग सेल्स. बाई सेल्स, यहाँ पे सेल्स ये क्रेडिट बैलेंसेस में रहता. सेल्स इज गिवन एज 1,47,500, जिसमें से हम सेल्स रिटर्न्स माइनस करेंगे जो डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ रहता. तो डेबिट बैलेंसेस में चेक करिए सेल्स रिटर्न्स कहाँ पे है. सेल्स रिटर्न्स 3,200. सेल्स 1,47,500. इसके अपोजिट डेबिट में सेल्स रिटर्न्स मिलेगा 3,200. So it will be shown on trading account credit side as buy sales 1,47,500 in inner column, less sales returns 3,200. So 500 minus 200, 300, 147 minus 3, 144. So 144, 300 will be shown in outer column. Then we'll be writing closing stock. Closing stock is an item of adjustment. तो closing stock कभी भी adjustment में मिलेगा 34,500. So first closing stock will be shown on credit side of trading account. Then closing stock, it is an asset. It will be shown on asset side of the balance sheet. So बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक 34,500. अब ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये चारों चीजें हर प्रॉब्लम में पहले लिख देंगे. जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड. अब इसके बाद स्टार्टिंग से एक एक नाम पढ़ेंगे, जो जिसमें आता है वो लिखते जाएंगे. जो ट्रेडिंग फैक्ट्री से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. जो ऑफिस से रिलेटेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. जो अपनी असेट है, जो अपनी खुद की चीज़ है, वो असेट में आएगा बैलेंस शीट के. जो अपने पे कर्जे हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा. सो फर्स्ट परचेजेस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिख दिए. देन सेल्स रिटर्न्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम सेल्स में से माइनस कर दिए. देन वी हैव वेजेस, इट इज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री, तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बताएंगे. इस पे अपने को कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे आप. टू वेजेस 5,500 will be recorded in outer column. Then wages के बाद we have salaries 23,000. It is an item of office, so it will be shown in profit and loss account. Salaries पे adjustment है outstanding salaries. So first salaries will be recognized in profit and loss account and will be recorded in inner column. तो salaries profit and loss के debit में लिखेंगे. टू salaries 23,000 will be recorded in inner column. Add outstanding salaries 5,500. इसका मतलब क्या? 23,000 salaries पे कर दिए और 5,500 पे करना है. सो 23 प्लस 5 28,000 प्लस 500 28,500. टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज इज 28,500. अब क्या करेंगे?
ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5500 है, इट विल बी लायबिलिटी, सो इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5500. देन आफ्टर सैलरीज वी हैव बैंक चार्जेस, ये ऑफिस का आइटम है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आके लिखेंगे टू बैंक चार्जेस 1500 रुपीज. तो सैलरीज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ है टू बैंक चार्जेस 1500 रुपीज. देन आफ्टर बैंक चार्जेस वी हैव इंश्योरेंस, अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस देता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते, ऑफिस इंश्योरेंस देता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते, खाली इंश्योरेंस बोला तभी भी ये ऑफिस का है समझ के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे 6500. इस पे अपने को एडजस्टमेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500. So first insurance will be recorded on debit side of profit and loss account as to insurance 6500 less prepaid insurance 1500. prepaid का मतलब क्या, ये पैसा हम वक्त से पहले पे कर दिए, so 6500 minus 1500, 500 500 0, 6 minus 1 5, so 5000 will be recorded on debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस. तो जबकि इंश्योरेंस के पैसे बने कितने 6500 पे करे, जिसमें से 1500 रुपये एडवांस में पे करे, तो ये साल का इंश्योरेंस कितना हुआ 5000. अब ये जो 1500 रुपये हम वक्त से पहले पे करें, ये चीज़ अपने लिए एसेट होती, वापस जब ये 1500 बनने का टाइम आएगा हम ये अमाउंट पे नहीं करेंगे. क्यों पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके. सो दिस विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 rupees. Then after insurance we have machinery 80,000. So machinery it is an asset, so it will be shown on asset side of the balance sheet. इस पे अपने को एडजस्टमेंट है क्या, depreciation on machinery 5%. So first machinery will be shown on asset side of the balance sheet as machinery 80,000 less depreciation. What is depreciation? Decrease in the value of asset. So 80,000 का 10% क्या होता 8,000. 10% निकालने का तरीका क्या है, जितने जीरोज है एक जीरो कम कर देना, तो 80,000 में 4 जीरोज है, एक जीरो कम कर दिए तो 8,000 हो गया. बट अपने को डेप्रिसिएशन 5% देना है, सो 5% विल बी हाफ ऑफ 10%. तो जब 10% की वैल्यू 8,000 है तो 5% की वैल्यू 4,000 हो जाती, तो 80,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर रहे तो 76,000 बचते. अब ये जो 4,000 रुपये हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे, इट इज लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000 rupees. So here it is shown as to depreciation on machinery 4,000 rupees. Then after machinery we have furniture 45,000. It is an asset. So हम उसको भी जो है ना assets बैलेंस शीट के assets में बताएंगे furniture 45,000. Next after furniture we have कैशड बैंक. कैशड बैंक का मतलब क्या, अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, तो ये चीज अपनी है तो इसको हम असेट्स में लिखेंगे. कैशड बैंक विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज कैशड बैंक 31,300. देन आफ्टर कैशड बैंक वी हैव ओपनिंग स्टॉक, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिए. देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या, ये बिल के पैसे अपने को आना है, सो इट इज एन एसेट, इट विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज बिल्स रिसीवेबल 29,000. इधर लिखा हुआ है देखिए बिल्स रिसीवेबल 29,000. Then after bills receivable we have debtors 50,000. debtors का मतलब क्या, इन लोगों से अपने को पैसे आना है, it is an asset. इस पे एडजस्टमेंट क्या है, प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स 5%. So first debtors will be shown on asset side of the balance sheet. debtors 50,000 minus bad debts, तो 50,000 का 10% क्या होता 5,000. 10% निकालने का तरीका क्या है, जितने जीरोज है एक जीरो कम कर देना, तो 50,000 में 4 जीरो है, एक जीरो कम कर दिए तो 5,000 हो गए. तो 10% की वैल्यू अगर 5,000 है तो 5% की वैल्यू इसकी हाफ हो जाती, सो हाफ ऑफ 5,000 इज 2,500. तो जो 50,000 रुपये आना था इसमें से 2,500 रुपये डूब जा रहे, तब अपने को कितने आएंगे 50 माइनस टू 48 माइनस 500 47,500. अब ये जो बैड डेट्स 2,500 है ये अपने लिए क्या है, लॉस है, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू बैड डेट्स 2,500. so here it is shown as two bad debts 2,500. Then we have audit fees 2,500. It is an item of office, so it will be shown on debit side of profit and loss account as two audit fees. Two audit fees 2,500. Next we have carriage. Carriage इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बताएंगे. Carriage 1,800. तो यहाँ पे है टू carriage 1,800 rupees. देन आफ्टर कैरियज वी हैव फैक्ट्री रेंट. तो ये फैक्ट्री का रेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, अगर ऑफिस का रेंट रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे.
अगर खाली रेंट भी देता तो ऑफिस का है समझ के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे, बट यहाँ पे फैक्ट्री रेंट बोला तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, टू फैक्ट्री रेंट 800 रुपीज। देन आफ्टर फैक्ट्री रेंट वी हैव कैरियज ऑन सेल्स, कैरियज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता, कैरियज ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता। So it will be shown on debit side of profit and loss account as to carriage on sales 2800 rupees. After carriage on sales we have office expenses. अगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते, ऑफिस एक्सपेंसेस बोला तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 5300 will be shown on debit side of profit and loss account. Then after office expenses we have advertisement expenses 1300. It is related to sales and distribution expenses, so it is related to office, so it will be shown on debit side of profit and loss account as to advertisement expenses 1300. So now we are done with all the items of debit balances. तो जो भी डेबिट बैलेंसेस में था वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आया, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आया, या तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आया। नाउ कमिंग टू क्रेडिट बैलेंसेस, ये जो भी क्रेडिट बैलेंसेस है या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएंगे, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएंगे। सबसे पहले कैपिटल 1,20,000 है, इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम कैपिटल 1,20,000 इनर कॉलम में बताएंगे। देन आफ्टर कैपिटल वी हैव सेल्स, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ऑलरेडी लिख दिए। देन वी हैव क्रेडिटार्स, क्रेडिटार्स किसको बोलते हैं, जिसको बिजनेस पैसे पे करना बाकी है, 62,000, इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन liability side of the balance sheet as creditors 62,000. Then after creditors we have bank overdraft 13,000, it is a liability, it will be shown on liability side of the balance sheet as bank overdraft 13,000. Then after bank overdraft we have bills payable 40,000, इसका मतलब क्या, ये बिल के पैसे अपन पे करना बाकी है, so it is a liability, it will be shown on liability side of the balance sheet as bills payable 40,000. Then after bills payable we have डिस्काउंट, ये अपने को क्रेडिट बैलेंसेस में दिया हुआ है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। अगर डिस्काउंट डेबिट बैलेंसेस में देता तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते, डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंसेस में दिया तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय डिस्काउंट 1,600. देन आफ्टर डिस्काउंट वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इट इज एन इनकम टू द बिजनेस, सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्रेडिट बैलेंसेस है तो क्रेडिट में आएंगे, so interest on drawings, it is an income to the business, so it will be shown on credit side of profit and loss account as by interest on drawings 2,400. So now we are done with all the items of debit balances as well as items of credit balances. Now let us have a look on the adjustments provided. ये जितने भी adjustments थे 2 बार हुए नहीं हुए चेक कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता, दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट्स में आता। नेक्स्ट आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक वी हैव एन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज को प्लस करेंगे, फिर जितना भी था आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये सेकंड टाइम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,500। नेक्स्ट आवर थर्ड एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट्स में आता, जिसपे डेप्रिसिएशन 5% 4,000 हो रहा, तो ये 4,000 80,000 में से माइनस करके 76,000 करके बताएंगे, फिर ये 4,000 अपने लिए नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000 बताएंगे। नेक्स्ट वी हैव एन एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं हम 6,500, जिसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करें, प्रीपेड का मतलब क्या, वक्त से पहले पे कर देना, तो 6,500 में से 1,500 माइनस करके 5,000 बताए। अब ये 1,500 अपने लिए क्या है, एसेट है, तो हम इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500। देन coming to last adjustment which is provide for bad debts 5%, it is related to debtors, debtors बैलेंस शीट के एसेट्स में रहता, तो डेप्टार्स 50,000 है, इसका मतलब अपने को लोगों से 50,000 रुपए आना है, जिसमें से 5% डूब जा रहे, तो 50,000 का 10% 5,000 होता, 5% उसका आधा 2,500 होता, तो 50 में से 2,000 चले गए 48, 48 में से 500 चले गए 47,500, तब ये 2,500 अपने लिए क्या है, नुकसान है, तो हम इसको सेकंड टाइम किधर बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बताते हैं, टू बैड डेट्स 2,500। नाउ विल बी बैलेंसिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल करेंगे 22,000 प्लस 75,000 प्लस 5,500 प्लस 1,800 प्लस 800, तब यहाँ पे 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,600, 1 लाख 3,100, 1 लाख 5,100, तो डेबिट का टोटल आ रहा 1 लाख 5,100 और क्रेडिट का टोटल आ रहा 144 178 800, क्रेडिट का टोटल है 1,78,800,
तब इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 1,78,800 ज्यादा है, तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे 1,78,800, 1,78,800। अब 1,78,800 में से क्या करेंगे, 1,05,100 माइनस करेंगे, तो क्या पैसे बच रहे, 73,700 बच रहे। इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी 73,700, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द सेम अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड एज, यहाँ जो टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी करे, इस तरफ बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी करके 73,700 लिखेंगे। नाउ विल बी डूइंग द टोटल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट का टोटल है 28, 29, 30, 34, 36, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 52, 600, 53, 400। डेबिट का टोटल आ रहा 53, 400। क्रेडिट का टोटल आ रहा 73, 74, 75, 76, 77,700। क्रेडिट का टोटल 77,700 है, डेबिट का टोटल 53, 400 है। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 77,700 ज्यादा है। सो 77,700 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 77,700 में से क्या करेंगे, 53,400 माइनस करेंगे। 7 minus 5 2, 7 minus 3 4, 7 minus 4 3, so 24,300। दिस विल बी शोन एज नेट प्रॉफिट। तब हम उसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 24,300, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट है, इट विल बी एडेड टू कैपिटल। तो बैलेंस शीट में जो सबसे पहले लायबिलिटीज में कैपिटल इनर कॉलम में लिखे थे, उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। सो कैपिटल 1,20,000 प्लस नेट प्रॉफिट 24,300, 120 प्लस 120, 144, 300। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे जो दोनों तरफ सेम आएगा। द टोटल ऑन लायबिलिटी साइड इज 2,64,800 as well as the total on asset side is also 2,64,800. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.